ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب 9 کروڑ کے فنڈ منظور۔ لیک سٹی سے رائیونڈ تک روڈ کی بحالی کے لیے 2 ارب منظور کیے گئے۔ ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ جیل کی تعمیر کے لیے 2 ارب 23 کروڑ منظور کیے گئے ہیں۔ پی این ڈی بورڈ کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ ادھر 120 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا ٹینڈر منسوخ۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ٹینڈر منسوخ کیا۔ فیصل آباد 86 اور بہاولپور کے لیے 34 بسیں خریدی جانا تھیں۔ پی این ڈی بورڈ نے 5 ارب روپے سے زائد کی نئی اسکیمیں منظور کر لی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 77ویں اجلاس میں دی گئی۔ پنجاب میں منہ اور پاؤں کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے 86 کروڑ منظور کیے گئے۔ لیک سٹی سے رائیونڈ روڈ کی بہتری و بحالی کے لیے 2 ارب منظور کیے گئے۔ دوسری جانب لاہور کی طرز پر فیصل آباد اور بہاولپور کے لیے الیکٹرک بسوں کا منصوبہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بسوں کی درآمد کے لیے دیا گیا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ خواہشمند فرمز اور مینوفیکچررز سے 28 اپریل تک بڈز جمع کروانے کا کہا گیا تھا۔ فیصل آباد کے لیے 86 اور بہاولپور کے لیے 34 بسیں خریدی جانا تھی۔ اس سے قبل لاہور میں 27 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں۔ لاہور کی طرز پر دیگر شہروں میں بھی برقی بسوں کو متعارف کروایا جانا تھا۔ لاہور میں نئے سیوریج منصوبے ٹنل بورنگ کا منصوبہ۔ واسا کے ٹنل بورنگ منصوبے کی تفصیلات آ گئیں۔ نیا سیوریج بچھانے کے لیے مائکرو ٹنلنگ پروسیس ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ منصوبے میں لارکس کالونی، گلبرگ، دھرمپورہ، شادمان، گلشن راوی شامل ہیں۔ ڈیزائن کے لیے 6 ماہ جبکہ تکمیل کے لیے 30 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ واسا شہر میں نیا سیوریج بچھانے کے لیے مائکرو ٹنلنگ پروسیس ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ واسا نے 32 کلومیٹر طویل زیر زمین سیوریج لائن بچھانے کے لیے پائپ کے معیار کا تعین کر لیا۔ واسا مائکرو ٹنلنگ پروجیکٹ کے لیے HDPE لائنز پائپ استعمال کرے گا۔ واسا کے ٹنل بورنگ منصوبے کا ڈیزائن اور تفصیلات سامنے آ گئی۔ منصوبے کو سیوریج بچھانے کے لیے 3 پیکیجز پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیکیج 12.14 کلومیٹر، دوسرا پیکیج 12.82 کلومیٹر، تیسرا پیکیج 7.25 کلومیٹر ہوگا۔ ڈیزائن کے لیے 6 ماہ جبکہ تکمیل کے لیے 30 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ واسا منصوبے کے لیے 14 ارب سے زائد فنڈز آسان شرائط پر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے لے گا۔ واسا منصوبے کو انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن موڈ پر ایوارڈ کرے گا۔ منصوبے میں لارکس کالونی، گلبرگ، دھرمپورہ، شادمان کے علاقے شامل ہیں۔ گلشن راوی، جوڑے پل، گڑی شاہو، فتح گڑھ اور دیگر اہم علاقے شامل ہیں۔ اب یہاں پر بات کریں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ اسپتالوں میں کام بند۔ سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ ڈور کے بعد انڈور بھی بند۔ ڈاکٹرز نے معمول کے آپریشن بھی روک دیے۔ میو اسپتال، گنگارام سروسز، PIC جناح اور جنرل میں کام بند کر دیا گیا ہے، جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی قیادت اور مظاہرین کے خلاف مقدمات درج۔ تھانہ سول لائنس اور ریس کورس میں پرچہ کٹ گیا۔ ڈاکٹرز کے خلاف پولیس مدعی بن گئی۔ YDA رہنما شعیب نیازی سمیت 8 رہنما نامزد۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ اسپتالوں میں کام بند۔ سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ ڈور کے بعد انڈور میں بھی علاج کی سہولت ناپید ہو گئی۔ معمول کے آپریشن بھی روک دیے گئے۔ مریض درد سے کراہنے لگے۔ لواحقین الگ سے پریشان ہیں۔ میو اسپتال، گنگارام سروسز، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جناح اسپتال، جنرل اسپتال سمیت چلڈرن اسپتال میں ہڑتال کے باعث علاج کے لیے ہزاروں مریض پریشان ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس آؤٹ ڈور اور انڈور سے ڈیوٹی سے غائب رہے۔ دوسری جانب 11 دفعات کے تحت گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مرکزی قیادت اور مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ تھانہ سول لائنس اور ریس کورس میں پرچہ کٹ گیا۔ ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں 8 افراد مقدمے میں نامزد ملزم قرار دیے گئے۔ مجموعی طور پر 300 سے زائد مظاہرین کو بھی مقدمے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق 50 سے 60 مظاہرین چاقو، کینچیوں اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ آور ہوئے۔ مظاہرین نے سرکاری املاک کو توڑا، بیریئرز گرائے، پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی۔ پولیس نے مال روڈ پر 3 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کروا دیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس دھرنے کے شرکاء کے ٹینٹ اکھاڑ دیے گئے۔ مال روڈ بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھل گئے۔ مال روڈ پر رات گئے گرینڈ ہیلتھ الائنس دھرنے کے شرکاء پر پولیس کا ایکشن۔ پولیس کی بھاری نفری نے مال روڈ پر آپریشن کلین اپ کر دیا۔ مال روڈ پر دھرنا دینے والے مرد اور خواتین کو حراست میں لے لیا گیا۔ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ 3 پریزن وین بھی بلوائی گئیں۔ مظاہرین کے دھرنے کے مقام کو خالی کرا لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مال روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے شرکاء کے لگائے گئے ٹینٹ بھی اکھاڑ دیے گئے۔
चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस की नफरी मौजूद है। माल रोड को मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पुलिस ऑपरेशन के बाद माल रोड को क्लियर कर दिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक 100 से जायद मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर एयरपोर्ट से 147 आज़मीन हज को लेकर एयर सियाल की परवास 7700 मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हजाज कराम को रुखसत किया। लाहौर से पहली हज परवास आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। एयर सियाल की परवास 7700 के जरिए 147 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने आज़मीन हज को रवाना किया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर नज़ीर अहमद खान भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर आज़मीन को फूलों के हार पहनाए गए। रवानगी से कबल लाउंज में एक खसूसी तकरीब भी मुनक्किद की गई। तकरीब में हज का फरीजा अदा करने वाले आज़मीन हज को मुबारकबाद दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि मैं पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करने आया हूँ। मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज ने ये जिम्मेदारी लगाई है। मैं खुश नसीब हूँ कि आप सबको सफर मुकद्दस पर रवानगी के लिए अलविदा कहने आया हूँ। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर नज़ीर अहमद खान का कहना था कि आज़मीन के लिए एयरपोर्ट पर खसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। अब बात करें कुछ मौसम की, तो शहरियों के लिए अच्छी खबर है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 30 अप्रैल से 4 मई तक आंधी और बारिशें होंगी। PTM पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के हवाले से शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 30 अप्रैल से 4 मई तक आंधी और बारिशें होंगी। PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक लाहौर, कसूर, सियालकोट समेत दीगर शहरों में आंधी और बारिशों के इम्कानात हैं। DG PDMA के मुताबिक तमाम महकमों को मौसमी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज भी शहर का मौसम गर्म रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 41 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम फीस 18 लाख मुकर्रर की गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5% इजाफी रकम वसूल कर सकेंगे। ज्यादा अखराजात का सबूत देकर फीस 25 लाख तक बढ़ाई जा सकेगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। अखराजात ज्यादा होने का सबूत देने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फीस 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सेशन 2025 से 5% इजाफी रकम वसूल कर सकेंगे। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस अखराजात ज्यादा होने का सबूत देकर फीस 25 लाख तक बढ़ा सकेंगे। ज्यादा अखराजात का जायजा लेकर PMDC ज्यादा फीस वसूल करने की इजाजत देगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 2026 से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक फीस में सालाना इजाफा भी कर सकेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की नई फीस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PHA लाहौर पार्किंग कंपनी की करोड़ों की नादहिंदानी के लिए पार्क सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जिम्मे 9.5 करोड़ वाजिब अदा है। PHA शहरियों से वसूली के बावजूद LPC को अदायगी से गुरेजा है। PHA लाहौर पार्किंग कंपनी की 9 करोड़ की नादहिंदा निकली। मुतादिद याद दहानियों के बावजूद PHA वाजिबुल अदा रकम की फराहमी से ताहाल गुरेजा है। साल 2013 से 2020 तक 6 पार्क्स की पार्किंग का निजाम ली पार्क चलाती रही। PHA 2018 तक पार्किंग के बदले वाजिबुल अदा रकम अदा करती रही। 2018 से 2020 तक PHA ने रकम की अदायगी रोक दी। PHA ने सर्विस फीस की मद में 2 साल की रकम अदा न की। 5 साल गुजर जाने के बावजूद लाहौर पार्किंग कंपनी लीग पार्क रकम की वसूली की मुंतजर है। PHA इस दौरान अवाम से 3 गुना पार्किंग फीस की वसूली करता रहा। PHA अवाम से रकम वसूली के बावजूद रकम अदायगी से गुरेजा है। डिफेंस रोड कायद मिल्लत कॉलोनी की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अंदरून मोची गेट की बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मोची गेट के बेशतर गलियों में बिजली की लटकती तारें मसाइल का बायस बन गई। मकामी ताजर बरादरी का कहना था कि बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल नहायत नीचे है। तारें टूटने और करंट लगने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। खसूसन बारिशों में इन गलियों से गुजरना महाल हो जाता है। चुंगी उमर सुदू के करीब सांपो वाले बाजार फेरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए। शहरी कहते हैं प्लांट की मोटर भी खराब हो गई। मजरे सेहत पानी पीने से बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करवाने की अपील की है। अब दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। जाली वीजा केस में मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील, मुद्दई मुकदमे को पेश न करने का मामला। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर FIA सरफराज फिर को जारी तौहीनी अदालत का शोकस नोटिस वापस ले लिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि FIA और एंटी करप्शन वालों ने कसम उठा रखी है कि अदालती तामील नहीं करवानी। लाहौर हाई कोर्ट ने हज पॉलिसी 2025 के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि हज पॉलिसी एक इंतजामी मामला है जिसमें अदालत मदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने तहरीरी हुक्म जारी किया।
अदालत ने हज पॉलिसी के खिलाफ दायर दरखास्त पर 4 सफात का फैसला जारी किया। जेर हिरासत मुलजिमों की वीडियो बनाकर शेयर करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस अलीजा बाजवा ने केस की समाअत की। मुअत्तल एसएचओ ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मुआफी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट से फवाद चौधरी को बड़ा धचका। अदालत ने फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमात यकजा करने की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड न उतारने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी DGPHA और दीगर फरीकैन को जवाब के लिए 27 मई तक मोहलत दे दी। जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत की। शादी में पहनने के लिए लिया गया कुर्ता शलवार का रंग छोड़ने का मामला। अलकरम स्टूडियो वापरा टाउन के खिलाफ 2 लाख हर्जाने का दावा। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के बयान के बाद अलकरम स्टूडियो के मालिक को 9 मई को तलब कर लिया। शहर में इंसदादे तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 170 इमलाक सरबमोहर कर दी गई, जबकि 20 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स भी हटाए गए हैं। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 4 FIRs का अंदराज। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाही नोटिस जारी किए गए। शहर में इंसदादे तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 170 अमलाक सरबमोहर कर दी गई, जबकि 20 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त कर लिया गया। सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर्स, स्टीमर्स भी हटा दिए गए। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 4 FIRs दर्ज की गई, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को भी इंतबाही नोटिस जारी किए गए। वहदत रोड, जुबली टाउन, न्याजी चौक से तजावुजात का खात्मा किया गया। यकी गेट, दिल्ली गेट और बासत सईदन शाह से गैर कानूनी कब्जे हटाए गए। म्यो अस्पताल, जैन मंदिर और न्यू अनारकली में भी कार्रवाइयां की गई। MCL की टीम ने दातागंज बख्श जोन और रावी टाउन जोन में 2 गैर कानूनी इमारतें मस्मार कर दी। चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास काटिया का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में कोई रियायत नहीं। रावी शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और दरियाई रेत निकालने पर कार्रवाई। रूडा इंतजामिया ने कार्रवाई के दौरान मुतादिद दफातर सील कर दिए। दरियाई इलाका फिरोजवाला से रेत निकालने वालों की मशीनरी कब्जा में ले ली गई। गैर कानूनी रेत निकालने वाले इजाज महर और काशिफ को काम रोकते हुए नोटिस जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सईद आशिक हुसैन करवानी की ज़ेर सदारत तिल की काश्त और वैल्यू एडिशन के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। माहिरीन, ज़री यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदान, एक्सपोर्टर्स और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। नेवी स्टोर ज़राअत हाउस में मुनाकिदा वर्कशॉप में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स मोहम्मद शबीर अहमद खान, डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद नवीद असमत काहनू ने शिरकत की। साजिदुर रहमान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PESPP, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली और स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद तिल की बरामदात बढ़ाना, सोयाबीन और कैनोला की मुल्की बरामदात में कमी लाना है। मंसूबे के तहत 17 अजला में तिल की फसल के 592 मॉडल फार्म्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। 1000 किसानों को 30,000 रुपये की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तिल की फसल अब बड़ी फसलात में शामिल हो चुकी है। जिगर के कैंसर के जदीद इलाज के लिए बोस्टन साइंटिफिक थेरेपी की इफ्तिताही तकरीब PKLI की जानिब से एहतमाम किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पहली मरतबा पब्लिक सेक्टर में इस नौयत की थेरेपी मुतारिफ करवाई गई है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की कंपनी बोस्टन साइंटिफिक ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के ताबन से जदीद ट्रीटमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। थेरेपी से जिगर और दीगर अकसाम के कैंसर के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस ने खसूसी शिरकत की। 3 एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट का इफ्तिताह भी किया। क्रिस्टियन हॉकिंस ने PKLI के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। तकरीब से खिताब में क्रिस्टियन के हॉकिंस का कहना था कि आज का इकदाम पाकिस्तान में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए अमरीका की दिलचस्पी की अक्कासी करता है। It is such a pleasure to be here with all of you today to celebrate this new partnership between Boston Scientific and PKLI. On behalf of the U.S. mission to Pakistan, I would like to extend my heartfelt congratulations to both PKLI and Boston Scientific. क्रिस्टियन के हॉकिंस का कहना था कि अमेरिका की 80 से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनमें 1,20,000 पाकिस्तानी मुलाजमत कर रहे हैं। Over 80 U.S. companies, most of which are Fortune 500, are registered and operating here in Pakistan, and many blue chip companies have operated here for decades. These companies are directly employing about 120,000 Pakistanis and indirectly supporting the livelihoods of over 1 million Pakistani workers. तकरीब में PKLI के डीन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार, डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर उस्मान और GM मार्केटिंग तारिक जमान भी शरीक हुए। कैमरामैन राना अयाज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम जनरल अस्पताल में ब्रेन गेन के नाम से इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर की खसूसी शिरकत।
अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम जनरल अस्पताल में ब्रेन गेन के नाम से इंटरनेशनल सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में मकीम डॉक्टर्स शरीक हुए। प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर मियां हनीफ, डॉक्टर फारूक अफजल, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत सुहेल, आमना एहसन चीमा ने शिरकत की। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद जफर ने कहा, ये डॉक्टर बिरौन ममालिक जाएंगे तो मुल्क की तरक्की का बाइस बनेंगे, मेडिकल लाइन की दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, मुल्क में मेडिकल की टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। डॉक्टर जब बाहर जाएगा तो वो वहाँ से रेमिटेंस भी भेजेगा कंट्री को, इधर पैसा भी आएगा प्लस टेक्नोलॉजी भी लाएगा। ये एक ऐसा शोबा है जो लोकल नहीं चल रहा है, ये इसमें नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। आप जब तक बाहर जाके अपनी पॉलिशिंग ना करें, वो चीज़ें ना सीखें, तो ये शोबा कंट्री में डेवलप नहीं हो सकता। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और शुरा ने सेमिनार के इनेकाद को बेहतरीन करार दिया। सिर्फ इस मेडिकल कॉलेज के बल्कि लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इस वक्त इधर हैं जो कि इस सारों से जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है। वंस आप जब लाइसेंस ले लेते हैं, आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो आप वहाँ पे ट्रेन होते हैं और ट्रेन होने के बाद यही लोग पाकिस्तान का सरमाया बन जाते हैं। कुछ इम्तिहान पाकिस्तान में हैं, कुछ बाहर हैं, तो आपने उनके लिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि उनके लिए आपने प्रिपेयर कैसे करना है, फिर उसके लिए रिसोर्सेज कौन सी इस्तेमाल होनी है। सेमिनार में डॉक्टर अहमद फराज तारड़, डॉक्टर अब्दुल अजीज, डॉक्टर सारा जीशान, डॉक्टर आयशा कमर समेत मेडिकल स्टूडेंट्स भी शरीक हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।